Hello students, today will be discuss about your subject social science and their part A geography and the chapter number 2 of the geography. Their title land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. There are some important MCQs and other types of questions discussed today. Now let us start the MCQs questions with answer. Choose the correct answer. Question number 1. In which of the following continents Tanzania situated? Their options: A. Europe, B. Asia, C. Africa, D. South America. So the right answer of this question is C. C is the right answer of these questions. Next question, question number 2. Which of the following is the most important natural resources? Their option: land, B. water, C. air and D. all of these. So the right answer of the all of these, D option. D option is the right answer of this question. D. And again, question number 3. Question number 3. The uneven distribution of population in the world is due to the varied characteristics of dash. Options: A. land and climate, B. climate, C. vegetation and D. settlements. So the right answer of this question: A. land and climate. कि जो का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है वहाँ के लैंड और वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करता है. तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है वो मेन क्या होता है? लैंड एंड क्लाइमेट पर और इन पर डिपेंड होता है. तो राइट आंसर द ए ऑप्शन, लैंड एंड क्लाइमेट. And again, question number 4. The example of common property resource is. Common property resource का जो examples है वो right answer A option community land, B individual building, C both A and B, और D है none of these. So the right answer of this question community land. कॉमन प्रॉपर्टी के लिए कम्युनिटी लैंड पर डिपेंड होता है, इंडिविजुअल बिल्डिंग्स अलग हो जाता है. तो राइट आंसर इज द ए. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ए. A is the right answer of this question. Now next question, question number 5. Is the use of land for different purpose like agriculture, forestry, mining, constructions of buildings, houses, industries and road. क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर्स में ऑप्शंस ये फर्स्ट ऑप्शन है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड यूज, लैंड फिलिंग एंड लैंड digging. So right answer of the question number 5, B, land use.
कि यूज़ ऑफ लैंड डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसका राइट जो पर्पज़ होगा वो क्या होगा, लैंड यूज, कितना हमने उसको लैंड का उपयोग किया, लैंड यूज़ किया गया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। B. And the next question, question number 6. Which of the following determine the use of land? कौन सा इसमें यूज ऑफ लैंड, इसमें भूमि का प्रयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉइल एंड टोपोग्राफी, बी क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, एंड सी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। सॉइल एंड टोपोग्राफी भी यूजेबल होती है, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन को भी देखना पड़ता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की भी आवश्यकता होती है। सो द आंसर इज राइट, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Australia uses its largest portion of its area for। ऑस्ट्रेलिया वो अपने क्षेत्र का जो लार्जेस्ट पोर्शन हिस्सा होता है, एक अधिक भाग होता है, उसका प्रयोग करता है। किसके लिए करता है? पास्चर्स, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, एंड फोर्थ डी ऑप्शन अदर यूजेस। तो राइट आंसर इज ए, पास्चर्स। तो राइट आंसर इज ए। A is the right answer of this question. A option is the right option. Now next question, question number 8. The lowermost layer of the soil is option weathered rock, parent rock, subsoil, and the D option, none of these. So the right answer of this question B, parent rock. Parent rock is the lowest layer of the soil. The right answer is B. B is the right answer of this question. And again, question number 9. Which of the following is used to of soil conservation? Soil conservation के लिए हमें इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, इसमें आपके कुछ बेल्ट वो बताए गए थे कि उसका यूजेस में क्या क्या होती हैं। जो इसका यूज़ बताया गया था जब हम उसको कंजर्व करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए कुछ आपके यूजेस बताया गया था, उनका को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें लैंड कंजर्वेशन में आपके इंस्टीट्यूशंस में देखा है, इसमें फर्स्ट है मल्चिंग, शेल्टर बेल्ट्स, काउंटर फ्लोइंग, एंड डी ऑल ऑफ दीज। So right answer of this question is D, all of these. And again question number 10, which is not an example of groundwater। ऐसे कौन सी एग्जाम्पल है जो ग्राउंड वाटर की नहीं है? ऑप्शन वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स, वाटर थ्रू बेल्स, water through hand pumps, water through submersible pumps. The right answer is the question A, water flowing in reverse। क्योंकि जो रिवर्स का पानी होता है वो ग्राउंड वाटर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रेनिंग वाटर उसका होता है। ठीक है, या कहीं से आया वाटर थ्रू वेल्स, वो आपका ग्राउंड वाटर, वेल से कुएं से उनका पानी आता है वो ज़मीन से आता है। वाटर थ्रू हैंड पम्प, उनको भी ड्रिग करके से निकालते हैं। वाटर थ्रू समरसेबल पम्प होता है, उसका भी डिगिंग के द्वारा होता है। सो द राइट आंसर ए ऑप्शन।
water flowing rivers. And next question, question number 11, which of the following is a famous world century? यहाँ पर कुछ फेमस वर्ल्ड सेंचुरीज के नाम दिए गए, उनमें से जो सबसे अधिक फेमस है वो कौन सी है? ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी टाइगर पार्क एट दुधवा, एंड सी गिर फॉरेस्ट, एंड डी भरतपुर सेंचुरी. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी, भरतपुर सेंचुरी. ये वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड सेंचुरी है भरतपुर में. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, भरतपुर सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट? अंडर फॉरेस्ट के द्वारा हमें आवश्यक क्यों होता है एरिया को को इंक्रीज करना, क्यों आवश्यक है? इसका रीज़न, देयर ऑप्शंस: ए टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. बी फॉरेस्ट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने के लिए फ्रॉम द एटमॉस्फियर से. एंड सी फॉरेस्ट हेल्प इन रेजिंग द लेवल ऑफ प्रिसिपिटेशंस, उसको लेवलिंग को सही करने के लिए. एंड डी ऑल ऑफ दीज. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, D. And again, question number 13, large scale destructions of forest cover and arable land has occurred due to the following. लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस फॉरेस्ट का कवर होता है रेवल टू द लैंड के द्वारा, उसमें किसकी आवश्यकता होती है? ए ग्रोइंग पॉपुलेशंस, बी ever growing demand of populations, and C both A and B, and D none of these. Right answer of C, both A and B. Right answer is the this question C. Again नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग है. How to match their options from column A to column B. Column A, fallow land. There are some matchings given from the column B. So the right matching of this questions, fallow land is the right matching is C. Marginal land kept fallow for a certain period to the restore their fertility. इसको ऐसा पीरियड इसको रिस्टोर करने के लिए प्रति. तो राइट आंसर ऑफ C मीन्स राइट आंसर ऑफ दिस and next question number second from the column A, biomass. Biomass, what is biomass? So the right answer of the A, groups of plant communities in areas having similar climate condition. जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उस पर सिमिलर, उस पर डिपेंड करता है, वो बायोमास के अंदर आता है. तो राइट आंसर इज ए. And again 3 number, weathering. What is weathering?
weathering, the right option. B, breaking up and decay the exposed rocks due to various factors. तो राइट आंसर, थर्ड का राइट आंसर है बी. एंड अगेन डी ऑप्शन फोर्थ, पास्चर्स. पास्चर्स ये वर्ड भी आपको ऊपर आया था. पास्चर्स मीन्स यहाँ पर क्या है, इसका राइट ऑप्शन है लैंड कवर्ड विद ग्रास shrubs on which animals are grazed freely. सर क्या होता है, जहाँ पर ऐसा क्षेत्र, ऐसी भूमि जो विद ग्रास सर्फ, इसमें ग्रास सर्फ जो सर्फ मतलब जो इसके तना जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो की लंबी लंबी घासें होती हैं. ऑन विच एनिमल्स, इनको जानवर होते हैं वो ग्रेज फ्री स्वतंत्र रूप से उसको यूज़ करते हैं, वो कहलाता है पास्चरस. तो राइट आंसर ऑफ डी इज फ्रॉम टू द 4 ऑप्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. फाइंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट, इट इज ट्रू और नॉट ट्रू और फॉल्स. Number 1, the quality of land differ from place to place. This statement is right or wrong, true or false. The quality of land, जो land की qualities होती है वो differ होती है from place to, अलग अलग प्लेसों पर क्या होती है, different होती है. It is the right answer. So the of this answer is true. True. And second, natural resources are essential for economic development of country. नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज संसाधन होती हैं वो आवश्यक होती है हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की आर्थिक स्थिति को विकासात्मक विकासित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है. तो इट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. इट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. सो द राइट आंसर true. Now next question, statement third, the grassland of Asia and Africa are overpopulated region. So the grasslands of Asia and Africa are overpopulated region. यहाँ पर कहा कि grassland जो भारत का grasslands और अफ्रीका का है वो overpopulated region है. It is the answer is false. This statement is false. So the right answer false. And next point statement, water is found only in a liquid form on earth. कहा गया कि वाटर है वो ओनली लिक्विड फॉर्म में पृथ्वी पर पाया जाता है. इट इज़ राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स. इट इज़ फॉल्स बिकॉज वाटर इज इन बोथ स्टेट्स, इन ऑल स्टेट, बोथ नहीं ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. So this statement is wrong because it is mentioned on these are found only in liquid form on earth, but it is not. Water is found in 3 states: solid, liquid and gases. So that this statement is false. And again, now fill in the blanks. Fill in the blanks. Right answer. Fill in the fill a place. Now start. Number 1. Nearly 97% of the Earth's total water is in the form of dash and dash. Means जो अर्थ पृथ्वी का टोटल वाटर है जो उसका 97% इज इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डेंस. किस पे रहता है, इसमें होगा आपका सीज एंड ओशियंस, समुद्र और सागर में होता है. इसका 97% जो टोटल वाटर होता है वो
उसमें पाया जाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, सी और ओशियन। ओशियंस। एंड नेक्स्ट सेकेंड नंबर, टाइगर, यहाँ पर टाइगर पार्क होगा, डी नहीं ए होना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट करो से राइट, पी ए होगा यहाँ पर, पार्क। टाइगर पार्क एट दुधवा इज सिचुएटेड इन द स्टेट। टाइगर पार्क ऑफ दुधवा इज सिचुएटेड इन द स्टेट। किस स्टेट्स में ये स्थित है? तो राइट आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। एंड नेक्स्ट, डैश इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रनिंग एंड फॉलिंग वाटर। ये ऑप्शन किसको फिल करता है, प्रोड्यूस करता है? की सहायता से जो रनिंग वाटर और फॉलिंग वाटर होता है उसकी सहायता से ये प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है? सभी जानते हैं आप कि वाटर, रनिंग और फॉलिंग वाटर से जो आपके डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसको बनाने का रीज़न क्या होता है? वहाँ पर वाटर को स्टोर करके फिर उसको रनिंग और एक फॉलिंग वाटर ऊपर करके उसको एक न्यू थिंग्स को डेवलप किया जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रनिंग एंड फॉलिंग वाटर। राइट आंसर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो electricity. And again, number 4, polar areas are dash populated areas. पोलर एरियाज होते हैं वो पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं। कैसे होते हैं, किस टाइप होते हैं? स्पार्सली। पोलर एरियाज आर स्पार्सली And next question, we can dash the supply of drinking water by installing desalination plants. सप्लाई वाटर की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा इनमें? इंक्रीज। वी कैन इंक्रीज increase. Next, in dash areas, landslides have been a major and widely spread natural disaster. Spread natural disaster में क्या आता है? इसमें mountains area landslides have been a major and widely spread natural disaster. Right answer mountains. Mountains is the right answer. So the complete today have complete your work. Then again some MCQs and other types questions related to these chapters next day will be discussed for you. Now thanks, have a good day.